Okay, once again, uh, let us just revise the thing what we have done yesterday. We have started this topic that is wireless LAN, that is wireless local area network. Okay, this is the fourth chapter. Okay, and we had just had a discussion about the topic of this particular chapter. So we have covered the introduction part, and we have seen wireless LAN के कुछ advantages, and after that some of the disadvantages. Let us just go through that advantages. Those advantages are flexibility, planning, design, robustness, cost. Okay. Some of the disadvantages are quality of service, proprietary solution, then वो हमने देखा नहीं restriction, then safety and security, global operation, low power. Okay, some of the design issues are license free operation, robust transmission technology, then simplified spontaneous cooperation, protection of investment, safety and security, transparency, and all that. Okay, now coming to one of the very important topic which comes under this chapter is infrastructure and ad hoc based network. Okay, I think we had a discussion about this also, but हम लोग अभी डायग्राम के थ्रू देखते हैं. एग्जाम में क्वेश्चन 10 मार्क के लिए कभी कभार पूछता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एड हॉक नेटवर्क को एक्सप्लेन करने के लिए, तो वी नीड टू राइट डाउन अबाउट द इंफ्रास्ट्रक्चर नेटवर्क also and for the ad hoc network also with the help of diagrams. Okay, you can see the diagram for infrastructure network. This is very simple diagram. Once I will explain you this diagram, then you can easily write down 1 or 2 pages regarding this. With this particular diagram, you can write down 1 or 2 pages. Okay, easily. Then coming to the ad hoc network, you can see this is the ad hoc network diagram. Again, some of the explanation will be required. Okay. So first of all, we'll take this one and we'll try to complete it in the 5 to 10 minutes. Okay, and then we'll move to the next topic. Okay. So coming to the infrastructure and ad hoc network, as I told you that in wireless network we have two broad categories. One is the infrastructure based network, and second is the ad hoc network. Okay, so infrastructure networks are the fixed network. Okay, these are also called as fixed network, and the ad hoc networks are the one which are created on the spot, which are created spontaneously, which are created and which is created very rapidly. Okay, and after communication and after the transaction, if you are done with that, then you can leave, or you can just all can leave the meeting and all can leave the network. Okay, so it can be created spontaneously on the spots, can be created, and then after work and after task which is done, so all can leave. Okay, so no need to have a strong, we can say, backbone for the ad hoc network. जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर नेटवर्क के लिए हमको क्या रिक्वायर्ड है, एक बैकबोन चाहिए. ठीक है, एक बैकबोन, एज अ बैकबोन हमको कुछ तो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए. ठीक है, इसीलिए उसका नाम भी इंफ्रास्ट्रक्चर है. बट एडहॉक नेटवर्क मतलब टेम्पररी नेटवर्क, इट इज द टेम्पररी नेटवर्क विच डज नॉट रिक्वायर्ड एनी काइंड ऑफ बैकबोन. ठीक है, so people will come with their gadgets and they will communicate, they will form a network, they will communicate and they will leave. Okay, so infrastructure network not only provide access to other network but also include forwarding function, medium access control. ये सारे function भी provide हम लोग को करता है. In these infrastructure-based wireless network, communication typically takes place only between the wireless node. Let me show you with the help of the diagram, because a diagram समझेगा तो ज़्यादा समझेगा आप लोग को. ठीक है, so this is the diagram for infrastructure-based network. If you will go through the diagram, then you will find there is a backbone. Okay, there is a wired network. You can see the line which you can see. This is the wired network, or we can say a backbone of the network. ठीक है, now to this backbone, all these things are connected. Okay, like this access point is connected, this access point, this access point. So all the sub networks are connected. एक second, एक second.
सॉरी सॉरी सॉरी, कुछ कुछ बीच में एडमिनिस्ट्रेटिव काम आ जाते हैं, तो विच आर अनअवॉइडेबल एक्शन, सो इसके लिए वो अटेंड करना ही पड़ता है, वी डोंट हैव एनी ऑप्शन फॉर दैट। ओके, ठीक है, हम लोग कहाँ थे, यहाँ थे हम लोग। तो यहाँ पर हम लोग थे, वी वर जस्ट टॉकिंग अबाउट द इंफ्रास्ट्रक्चर नेटवर्क। सो इफ यू विल जस्ट हैव अ लुक एट दिस diagram, that is infrastructure network, then you will find there is a, you know, backbone in the network. Okay, so this backbone itself is indicating that कि this is the infrastructure network। देखो नाम में उसके क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर है। and you know the basic meaning of infrastructure, there is some kind of, you know, skeleton, or we can say some kind of a structure is there. Okay, so we have an structure, we have a structure, we have some kind of structure over there. You can see this is the backbone, or we can say a structure over there, to which all the networks are connected। You will see that all the network, ये वाला जो नेटवर्क है आपका, ये कनेक्ट है, ये वाला नेटवर्क भी कनेक्टेड है, और ये वाला नेटवर्क भी कनेक्टेड है। ठीक है, so all these networks are connected to your structure, your infrastructure, okay, your backbone। तो ये जो जो आपको इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायर्ड है, ये आपको लगेगा वायर्ड लगेगा। ठीक है, बिकॉज ये इसको भी हम लोग नहीं बना सकते। तो हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो वायर्ड नेटवर्क है, बट द नेटवर्क जो हमारे है वो नेटवर्क के अंदर वी कैन हैव वायरलेस नोड, वी कैन हैव वायरलेस गैजेट्स। ओके, जो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर लैपटॉप है, यहाँ पर टैबलेट है, यहाँ पर लैपटॉप है, यहाँ पर टैबलेट्स है ना, ऑल दीज आर, यू नो, आर कनेक्टेड टू द एक्सेस पॉइंट। ओके, ऑल दीज आर वायरलेसली कनेक्टेड टू द एक्सेस पॉइंट। ये जो आपको सिंबल यहाँ पे नजर आएगा ना, ऐसा कुछ ऐसा सिंबल दिखेगा, तो हमेशा फ्लैश जो सिंबल आता है वो वायरलेस के लिए यूज होता है। तो वायरलेस 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 एंड वायरलेस, सो all the devices are connected to the access point via wireless link। ओके, और ये जो आपके एक्सेस पॉइंट है वो इंफ्रास्ट्रक्चर नेटवर्क को जो कनेक्टेड है वो वायर्ड नेटवर्क के थ्रू कनेक्टेड। सो दिस काइंड ऑफ नेटवर्क यू कैन कॉल इट एज अ इंफ्रास्ट्रक्चर नेटवर्क। ठीक है, एंड आई थिंक अब डायग्राम देखने के बाद मैं आपको बोलूंगा मैं दूसरी बार डायग्राम बनाऊं, you can easily draw the diagram because that is damn simple। एक बैकबोन की तीन एक्सिस पॉइंट बना दो लाइक अ बस टोपोलॉजी। ओके, और एक्सिस पॉइंट के ऊपर आपके एक अलग नेटवर्क, दूसरे एक्सिस पॉइंट पे अलग नेटवर्क, और थर्ड एक्सिस पॉइंट पे एक अलग नेटवर्क। ठीक है, so we can have separate network on each and every access point। Okay, so this kind of network can be called as infrastructure based network। Okay, I hope this is clear to all of you। ये हमारी स्लाइड बाकी थी, एक बार जरा देख लेते हैं। दी एक्सेस पॉइंट डज नॉट, अब देखो ये आप पढ़ेंगे ना तो आप लोगों को डायग्राम के थ्रू समझने में आसानी होगी, मतलब आप लोग जब पढ़ेंगे तो खुद ब खुद समझ में आएगा आपकी। लेट अस हैव द एक्सेस पॉइंट डज नॉट जस्ट कंट्रोल द मीडियम, एक्सेस पॉइंट डज नॉट जस्ट कंट्रोल द मीडियम बट ऑल्सो एक्ट एज अ ब्रिज टू अदर वायरलेस और वायर्ड नेटवर्क। ठीक है, तो दीज एक्सेस पॉइंट इट इज नॉट एक्टिंग एज अ मीडियम एक्सेस कंट्रोल ही जैसे आपको एक्ट नहीं करता है, बल्कि इट एक्ट एज अ ब्रिज ऑल्सो। फॉर एग्जाम्पल ये लैपटॉप आप अगर कभी इस टैबलेट को कुछ मैसेज भेजना चाह रहा है, फॉर एग्जाम्पल ये अगर इसको मैसेज भेजना चाह रहा है, तो क्या हो जाएगा, आपका जो मैसेज जाएगा वो एक्सेस पॉइंट के थ्रू जाएगा, सो इट विल एक्ट एज अ ब्रिज। ओके, नाउ दिस एक्सेस पॉइंट विल सेंड द सिग्नल टू ये वाला एक्सेस पॉइंट, एंड दिस एक्सेस पॉइंट ये सिग्नल सेंड करेगा आपके टैबलेट को, सो दे आर एक्टिंग एज अ ब्रिज। ओके, this figure shows three access point we have seen with their three wireless network and wired network also। Several wireless networks may form one logical wireless network। ठीक है, so this is very simple। तो ये इसका डायग्राम है। आगे उसका और जो थोड़ा एक्सप्लेनेशन है वो यहाँ पर मैंने लिखा हूँ। The design of the infrastructure based wireless network is simple। Most of the network functionality lies within the access point, because access point अगर नहीं है तो फिर ये आपका बन जाएगा कौन सा नेटवर्क बनेगा, एडहॉक नेटवर्क बन जाएगा, और ये आपका एक्सेस पॉइंट होने की वजह से ये इंफ्रास्ट्रक्चर नेटवर्क बना हुआ है। एंड देर इज अ कनेक्टिविटी बिटवीन ऑल द एक्सेस पॉइंट थ्रू विच ऑल द नेटवर्क्स आर कनेक्टेड। ठीक है, एक नेटवर्क कनेक्टेड है वायरलेस आपके एक्सेस पॉइंट से। नाउ दैट एक्सेस पॉइंट इज कनेक्टेड टू अदर एक्सेस पॉइंट वाया सम इंफ्रास्ट्रक्चर, वाया सम बैकबोन। ठीक है, ये आपके इसमें, and this type of network can use different access scheme with or without collision।
तो अलग अलग स्कीम जो हमारे पास में है, CDMA वगैरह वगैरह, दैट ऑल कैन बी अप्लाइड ओवर हियर. Collision may occur if medium axis of the wireless node and the access point is not coordinated. If there is a coordination, if there is a coordination between these access point, this access point, and this axis point. If there is a coordination between axis point number 1, 2 and 3, then there will not be a single collision. Okay, अगर collision, अगर coordination है तो collision नहीं होगा, और अगर कभी coordination नहीं है तो collision होने के chances हैं. If only the axis point controls the medium, no collisions are possible. तो वही चीज लिखी है जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, वही लिखी है. तो इंफ्रास्ट्रक्चर बेस्ड नेटवर्क लूज सम ऑफ द फ्लेक्सिबिलिटी वायरलेस नेटवर्क कैन ऑफर. यहाँ पर देखो एक छोटा सा मतलब एक जिसको हम लोग बोलेंगे फ्लेक्सिबिलिटी नहीं मिल पाती है इंफ्रास्ट्रक्चर नेटवर्क में. क्यों नहीं मिल पाती फ्लेक्सिबिलिटी? यू कैन नॉट मूव दिस इंफ्रास्ट्रक्चर, यू कैन नॉट मूव दिस नेटवर्क फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस. क्यों नहीं कर सकते? आपके नेटवर्क में आप यहाँ से वहाँ मूव हो जाओ, आपका ये लैपटॉप यहाँ से ये लोकेशन पे चला गया, ये लोकेशन से ये लोकेशन पे चला गया, सो बट विद इन द रेडियो कवरेज, इट इज विद इन द रेडियो कवरेज है. बट यही चीज अगर आप एक्सेस पॉइंट के साथ में करना चाहे तो नहीं कर सकते, बिकॉज इतना जो पार्ट हमारे पास में है, हमारे पास में जो इतना वाला कौन सा, ये जो वाइड जो पार्ट है हमारे पास में, ये वाइड पार्ट जो है ये फिक्स है. ठीक है, you cannot move this wide part, that is the backbone part, or you can call it as the infrastructure part, from one location to another location. And yeah, no doubt it is possible to relocate, okay, from one location to another location. You can easily do it, but it requires time and cost, okay, which you cannot bear actually. Okay, so infrastructure network के अंदर सबसे बड़ी ये चीज़ है कि इसमें फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है. ठीक है, यही चीज, यही पॉइंट आप लोग फ्लेक्सिबिलिटी देखोगे अपने एडहॉक नेटवर्क में, कि आपका एडहॉक नेटवर्क यू कैन इजीली मूव बिकॉज देर इज नो इंफ्रास्ट्रक्चर. in this we have infrastructure, so we cannot move it, but in the ad hoc network we have infrastructure, we don't have infrastructure in the ad hoc network, so we can easily move from one location to another location. Okay, सेल्यूलर फोन नेटवर्क्स आर द इंफ्रास्ट्रक्चर बेस्ड नेटवर्क फॉर अ वाइड. ये आपके जो सेल्यूलर फोन होता है उसकी एग्जांपल दिया है और कुछ नहीं. इंफ्रास्ट्रक्चर डज नॉट नेसेसरीली इम्प्लाई और फॉलो अ फिक्स्ड वायर्ड नेटवर्क. तो बेसिकली हम अपने इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ में यहाँ वहाँ मूव नहीं कर सकते. ठीक है, अगर मूव करेंगे सो यू हैव टू पे फॉर इट. ओके, यू हैव टू पे फॉर इट मीन्स you have to pay for the cost and for the time also, because you know these access point and these wired network, which is actually a physical wire, those are actually fixed. Okay, so moving these structure from one location to another location is quite difficult task. Okay, so even this is not impossible, it is possible, but it takes time and cost. Okay, ये दोनों चीजें इसके अंदर है. अब आते हैं आपके एडहॉक नेटवर्क की बात करते हैं. सो एडहॉक, अच्छा मैं आपको दोबारा रिमाइंड करवा दूं कि इस बेस पे क्वेश्चन आया है, काफ़ी बार क्वेश्चन एग्जाम में आया है. एडहॉक नेटवर्क एंड वायरलेस इंफ्रास्ट्रक्चर नेटवर्क, दोनों डायग्राम के साथ में एक्सप्लेनेशन, इंट्रोडक्शन और उनके पूरा एक्सप्लेन करना, ये आपको 10 मार्क के लिए क्वेश्चन एग्जाम में पूछा है. इंफ्रास्ट्रक्चर नेटवर्क एंड एडहॉक नेटवर्क. ठीक है, now coming to the second one, that is ad hoc network. Now we can easily we can say that in the infrastructure network we were having some kind of infrastructure, we were having the wired connection, and through that wired connection access point were connected, और एक्सेस पॉइंट के थ्रू फिर बाकी सारे आपके वायरलेस डिवाइस कनेक्टेड थे, बट वहां पर एक्सेस पॉइंट तो आपके वायर्ड कनेक्शन से कनेक्टेड थे. ओके, नाउ व्हाट हैपन इन द एडहॉक नेटवर्क, let us have a look. Okay, now this is your ad hoc network. Now you can easily see, this is your ad hoc network, this is your ad hoc network, like that. Okay, we are not having any kind of access point in the network. We are not having any kind of access point in the network. It means that we are not having any kind of access point in the network means what? We are not having any kind of a structure. Okay, so इसीलिए इसका नाम ad hoc है. तो एडहॉक क्यों है? इसका नाम इंफ्रास्ट्रक्चर इसके लिए नहीं है बिकॉज में कोई इंफ्रास्ट्रक्चर है नहीं. ठीक है, इसका नाम एडहॉक इसके लिए है कि ये वाला डिवाइस, ये वाला डिवाइस, ये वाला डिवाइस ऑल आर ऑन दी एडहॉक बेसिस. एडहॉक बेसिस बोलता है टेम्पररी बेसिस को. ठीक है,
So all these devices came over here for a purpose to in order to transfer some of the file, in order to share some information. So they all come at one place, they communicated with each other, they transferred the required files whatever they have to, and after communication and after transaction they leave. Okay, so the transaction, the communication was on the ad hoc basis, was on the temporary basis. So that's why this network is called as ad hoc network. ठीक है, so you can see that we are not having any kind of access point, we are not having any kind of infrastructure in the network. So that's why this particular network is called ad hoc network, because all the devices are on ad hoc basis, all the devices are on टेम्पररी बेसिस, नॉट फॉर द परमानेंट बेसिस. हमारे पास यहाँ पर जो एक्सेस पॉइंट है ये परमानेंट बेसिस पे, ये फिक्स हो गए, यहाँ पर ये फिक्स है, यहाँ पर आपका ये यहाँ पर फिक्स है और ये भी यहाँ पर फिक्स है. तो ये जो फिक्स वाले हैं इनको हम कुछ नहीं कर सकते, बट जो ये यहाँ पर क्या है हमारे पास में, all these devices are movable, can move anywhere. Okay, they came, all these three devices came here for a purpose, in order to transfer some of the information, some of the data they want to share. So they shared it, and after some amount of time they all leave. एक चला गया यहाँ पर, एक चला गया आपका यहाँ पर, और एक चला गया आपका यहाँ पर. क्या हुआ, कहाँ गए, कहाँ थे आप लोग, कोई भी, मतलब आपकी जगह, अब जगह पे भी कोई है, कोई भी नहीं. So all the devices are on the ad hoc basis. So that's why this particular network works. Okay, यहाँ पर कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं. अगर इसको कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करनी है तो भाई साहब ने शेयर कर दिए, इनको कुछ शेयर करनी है इन्होंने शेयर कर दिए, इसको इससे कुछ शेयरिंग करनी है कर दिए, इनको इनको से कुछ शेयर करनी है कर दिए. ठीक है, इन दिस वे ऑल देम. अच्छा, अगर कुछ और ऐड होना है तो अभी आपके और भी डिवाइसेस ऐड हो सकते हैं. ठीक है, और भी डिवाइस ऐड हो गए, ये इसको कनेक्ट हो गया. ठीक है, ये इसको कनेक्ट हो गया, ये इसको कनेक्ट हो गया, एंड सो ऑन. ठीक है, ये आपका एडहॉक नेटवर्क है. तो डिवाइसेस विल कम एट वन प्लेस, they will communicate. Okay, they will communicate and they will leave. Okay, after a purpose, after some amount of time they will leave. Okay, so that's a ad hoc network. Okay, in ad hoc network the complexity of each node is higher. अच्छा, देखो यहाँ पर हमारे पास में देखो एक चीज आपको बहुत इंपॉर्टेंट बताना है. एक्सेस पॉइंट होने की वजह से, कॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर एक्सेस पॉइंट विच वाज प्रेजेंट इन द इंफ्रास्ट्रक्चर नेटवर्क, व्हाट वाज द थिंग, कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव काम होते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल अपनी कॉलेज है, अपनी कॉलेज के अंदर बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जो हम नहीं करते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल आपके कुछ डॉक्यूमेंटेशन पार्ट है. ठीक है, और अकाउंट्स का रिकॉर्ड है. ठीक है, कुछ एडमिशन रिकॉर्ड है. ठीक है, कुछ एग्जामिनेशन रिकॉर्ड है, कुछ ऐसे दूसरे काम है जो हर फैकल्टी नहीं मेंटेन कर सकता. सो फॉर दैट व्हाट वी हैव डन, we have appointed store department, we have appointed admission department, we have appointed exam cell, we have appointed admin department. So all these departments take care of this unnecessary work which is not directly related with the faculty. Okay, so in the same manner हमारे पास में जो एक्सेस पॉइंट होते हैं ये कुछ ऐसे एडमिनिस्ट्रेटिव काम करते हैं जो कि ये और ये नहीं कर सकते, ये और ये नहीं कर सकते, मतलब ये भी नहीं कर सकते, सॉरी, और ये भी नहीं कर सकते, बल्कि काम वो आपका एक्सेस पॉइंट कर सकते हैं. तो सम ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क विच आर बीइंग डन बाय द एक्सेस पॉइंट आर प्रेजेंट इन द इंफ्रास्ट्रक्चर नेटवर्क, बट यू विल नॉट फाइंड दैट एक्सेस पॉइंट इन द एडहॉक नेटवर्क. हमारे पास यहाँ पे कोई एक्सेस पॉइंट नहीं है, तो जितने एडमिनिस्ट्रेटिव काम है वो किसको करना पड़ेगी, अरे बोलो ना, किसको करना पड़ेंगे यहाँ पर इन एडहॉक नेटवर्क. ऑल दोज, मैंने खाली एक नाम लिया हूँ, एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क. ठीक है, उसके अंदर बहुत सारे काम आते हैं, वो मैं आपको शायद आगे बताऊंगा. सो ऑल दोज वर्क्स आर बीइंग डन बाय whom, बाय दीज डिवाइसेस इटसेल्फ. ये वाला डिवाइस, ये वाला डिवाइस, ये वाला डिवाइस. ठीक है, तो यहाँ पर कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती है भाई, इंडिविजुअल लेवल पे कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती है, वहाँ पर कॉम्प्लेक्सिटी कम है. क्यों, क्योंकि वहाँ पे कॉम्प्लेक्सिटीज आर बीइंग एब्जॉर्ब बाय दी एक्सेस पॉइंट. एक्सेस पॉइंट ने सारा काम संभाल लिए थे, लेकिन एडहॉक नेटवर्क में यहाँ कोई एक्सेस पॉइंट ही नहीं है. नहीं है तो फिर काम खुद से करो. ठीक है, तो भाई देखो दोनों जगह एडवांटेजेस भी है कुछ, और उसमें कुछ डिसएडवांटेजेस भी. अगर कुछ फायदा है तो कुछ प्रॉस है, तो कुछ कॉन्स भी है. ओके, बिकॉज एवरी नोड हैज टू इम्प्लीमेंट, देखो जो काम बता रहा हूँ वो काम ये है, हैज टू इम्प्लीमेंट
मीडियम एक्सिस मैकेनिज्म, मीडियम के अंदर कौन बात करेगा, फॉर एग्जांपल अभी कौन, जैसे फॉर एग्जांपल ये इससे कम्युनिकेट कर रहा है, ठीक है, ये इससे कम्युनिकेट कर रहा है, और उसी टाइम पे अगर ये भी इससे अगर कम्युनिकेट करना चाहेगा तो हिडन टर्मिनल, एक्सपोज टर्मिनल प्रॉब्लम आएंगी कि नहीं आएंगी हमारे पास में, ठीक है, वो ध्यान में रखना है, ठीक है। तो ईच एंड एवरी टर्मिनल, ईच एंड एवरी नोड हैज टू इम्प्लीमेंट मीडियम एक्सेस मैकेनिज्म, मीडियम को एक्सेस करने का कोई मैकेनिज्म होना चाहिए जो हर नोड के पास में होना चाहिए। मैकेनिज्म टू हैंडल हिडन और एक्सपोज टर्मिनल प्रॉब्लम, आ गया भाई साहब वो भी प्रॉब्लम। एंड परहैप्स, जैसा बोला ना आपको मैंने, स्टोर का काम है, एडमिशन का काम है, और डॉक्यूमेंटेशन का काम है, और एग्जाम का काम है। सो ऑल दीज टास्क आर बीइंग हैंडल बाय देम, ठीक है, दो सो दोज आर द एक्सेस पॉइंट एंड वी आर द नोड, ओके। बट इन एडहॉक नेटवर्क अगर हमने उनको अपॉइंट नहीं किया तो क्या होगा फिर, वी हैव टू परफॉर्म ऑल दोज टास्क विच आर बीइंग डन इन द इंफ्रास्ट्रक्चर नेटवर्क, इट वाज बीइंग डन बाय दोज एक्सेस पॉइंट, ठीक है। तो एक्सेस पॉइंट नहीं है तो फिर किसको करना पड़ेगा, टर्मिनल को करना पड़ेगा। तो टर्मिनल को करने के लिए टर्मिनल की कैपेबिलिटी भी चाहिए, उतनी कैपेसिटी भी चाहिए। इसके लिए एवरी नोड हैज टू इम्प्लीमेंट मीडियम एक्सेस मैकेनिज्म टू हैंडल हिडन और एक्सपोज टर्मिनल प्रॉब्लम एंड प्रायोरिटी मैकेनिज्म, कौन पहले बोले, कौन पहले ट्रांसमिट करे, कौन उसको एक्सेप्ट करे, या उसके बाद में तेरा नंबर, तेरे बाद इसका नंबर, बिकॉज यहाँ पे कोई मॉनिटर है नहीं, एक्सेस पॉइंट है नहीं। एक्सेस पॉइंट होता तो सब कुछ मैनेज कर लेता, लेकिन जब एक्सेस पॉइंट नहीं है सब कुछ किसको करना है, इनको खुद ही करना है। ओके, सो इन ऑर्डर टू प्रोवाइड द क्वालिटी ऑफ सर्विस, तो भाई साहब ये सब चीज़ें रहेंगी तभी जाके क्वालिटी ऑफ सर्विस प्रोवाइड हो पाएंगी, वरना क्या हो जाएगा फिर, एकदम कॉम्प्लिकेशन हो जाएगा। वो बोलेगा मैं पहले करूंगा, ये बोलेगा कि नहीं पहले मैं ट्रांसमिट करूंगा, नहीं कर पा रहे हम लोग। मीडियम एक्सेस मैकेनिज्म नहीं हुआ प्रॉपरली, हिडन एक्सपोज टर्मिनल प्रॉब्लम से हैंडल नहीं हुआ, क्या हो जाएगा, प्रॉब्लम आ जाएगा, ठीक है। तो एडहॉक नेटवर्क के अंदर इफ़ वी आर नॉट हैविंग एक्सेस पॉइंट, इफ़ वी आर नॉट हैविंग मतलब क्या, हमारे पास रहता ही नहीं है। So in ad hoc network, we don't have access point. So if we are not having access point, then we have to perform all these tasks, okay? And we have to implement all these facilities, all these features in the node itself, so that we will not face any kind of problem. Okay? Examples है जैसा यहाँ पर needed for unexpected meeting, नीडेड फॉर अनएक्सपेक्टेड मीटिंग, जैसे फॉर एग्जांपल आपने क्या किया, दो लोग तीन लोग आप लोगों को कुछ बात करना थी, आपने विदाउट एनी एक्सेस पॉइंट क्या कर दिया, आपने तीनों लोग किसी टेक्नोलॉजी के थ्रू कनेक्ट हो गए, किसी सॉफ्टवेयर के थ्रू आप लोग कनेक्ट हो गए, बात कर लिए, कम्युनिकेट कर लिए, ट्रांसफर कर लिए, चले गए। So it can be needed for the unexpected meetings also. Can be it can be a quick replacement of infrastructure or communication scenarios for far away from any infrastructure where we are not having any kind of access point, और कुछ ऐसा नहीं हमारे पास में, तो तीन डिवाइस कनेक्ट हो गया, ब्लूटूथ से कनेक्ट कर लिए और आपस में कम्युनिकेट कर लिए, जो भी ट्रांसफर करना था कर लिया और चले गए, ठीक है। सो दिस पर्टिकुलर नेटवर्क कैन बी यूज्ड एट दीज लोकेशंस, ओके। तो आई होप दैट आपको ये एडहॉक नेटवर्क समझ में आया होगा, और उसके पहले वाला इंफ्रास्ट्रक्चर नेटवर्क भी समझ में आया होगा। इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब एक्सेस पॉइंट, एक्सेस पॉइंट, सारे एक्सेस पॉइंट किसको कनेक्ट होते हैं, वाइड नेटवर्क को कनेक्ट होते हैं, ठीक है। बट इन एडहॉक नेटवर्क वी आर नॉट हैविंग एनी काइंड ऑफ वाइड नेटवर्क, ठीक है। ऑल द टर्मिनल्स, ऑल द नोड्स आर कनेक्टेड टू ईच अदर, ओके। तो वी आर नॉट हैविंग एक्सेस पॉइंट, तो यहाँ पर कुछ कॉन्स भी आएंगे, ओके। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग स्टॉप करते हैं, इतना इतना हम लोग रुकते हैं, बिकॉज इफ आई विल स्टार्ट दिस वन, IEEE 802.11, दैट इज वायरलेस लैन। तो इंफ्रास्ट्रक्चर बेस्ड वायरलेस लैन, अब देखो यहाँ पर भी सेम है एक्चुअली, बहुत सिंपल है, बस खाली इतना है कि आप डायग्राम से घबराओ मत, डायग्राम याद में रखो, ठीक है। देखो यू विल फाइंड सम ऑफ द सिमिलैरिटी बिटवीन द इंफ्रास्ट्रक्चर नेटवर्क और ये वाला इंफ्रास्ट्रक्चर नेटवर्क। This is the architecture of infrastructure based network, infrastructure based WLAN, that is wireless LAN, ठीक है। तो ये है, एंड देन उसके बाद में आर्किटेक्चर ऑफ IEEE 802.11 एडहॉक वायरलेस लैन, ठीक है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर एडहॉक, यहाँ पर वायरलेस लैन के थ्रू उसने आर्किटेक्चर बताया, वही है बस के अंदर। और प्रोटोकॉल आर्किटेक्चर, ये इसका प्रोटोकॉल आर्किटेक्चर है। मैक मैनेजमेंट, हाइपर लैन, मैक मैनेजमेंट है, हाइपरलाइन 1, हाइपरलाइन 2 भी होगा यहाँ पर शायद, हाइपरलाइन 2 के बारे में भी है। देन मोबिलिटी सपोर्ट,
वाईफाई सिक्योरिटी, लास्ट टॉपिक जो वाईफाई सिक्योरिटी के बेस पर है। वाईफाई सिक्योरिटी के अंदर WEP है, WPA है। तो दोनों हम लोग देखेंगे। वायरलेस लैन थ्रेड्स कौन कौन से होते हैं, वॉर ड्राइविंग, इवेज ड्रॉपिंग, then ROG and unauthorized access point, DOS, authentication flood attack, deauthentication flood attack, network jamming attack, equipment destruction attack and so on। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं इसके अंदर। तो जो मेन जिसमें जो है आपका IEEE 802.11 का इंफ्रास्ट्रक्चर बेस्ड WLAN एंड इंफ्रा और एडहॉक बेस्ड WLAN। ठीक है, तो ये दोनों इंपॉर्टेंट है, दोनों करें तो ये भी एक क्वेश्चन एग्जाम में आता है। ठीक है, ओके, सो we'll stop for today and tomorrow I think हम लोग कल थर्सडे है ना, थर्सडे फ्राइडे कल भी है परसों भी है। We'll try to wind up this particular chapter by the end of this week because प्रॉब्लम ऐसा है कि इसको हम लोग कंप्लीट अगर कर लेते हैं तो इसमें ज़्यादा कुछ ऐसे वो नहीं है। आपको इसमें डायग्राम्स कुछ याद में रखना है, कुछ थ्योरी याद रखना है। तो जो जो इम्पोर्टेंट है मैं आप लोगों को अभी उसके ऊपर फोकस करवाऊंगा बिकॉज वी कैन नॉट डू ऑल द टॉपिक्स। ओके, बिकॉज आप लोग को पता है कि ये जो आपका वीक चल रहा है आई थिंक ऑल आर प्रेजेंट, तो आई थिंक आप लोगों को बोल 17 ही है, फिर भी देखो कॉलिंग स्टॉप को जबरदस्ती का ड्राइव बढ़ते आ रहा है।